Hello dear soldiers of ninth class, good afternoon, good evening, good morning to each and everyone. I hope that you will be fit and fine. Myself Ramji sir, I am welcoming to all of you into the second lecture of the chapter number 3, atoms and molecule, and in which we just study about the laws of chemical combination. So my dear soldiers, please be ready with copy and pen to be understand the laws of chemical combinations. I have given a small homework to all of you to study about the Dalton's atomic theory. What is the Dalton's atomic theory? I hope that, I wish that you have studied. If you have not studied, so we will continue of this one. You will just write into the comment box and report to me that sir, we don't understand the Dalton's atomic theory, so we can just explain properly of that one also. But if you have studied, so according to the Dalton's atomic theory, what the Dalton's stated about the atom, that is, atom is the smallest particle, smallest portion of the matter which cannot be exist into the free state. Atoms cannot be exist into free state. It means that the atom will combine to each other, it will combine with others and forms the molecule. क्या हमने सीखा? डाल्टन्स ने क्या बताया कि एटम जो है कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी अपने सेम टाइप के एटम से या किसी दूसरे एटम से आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल को बनाएंगे. So molecule atoms just will not be combined in a random manner. Atoms will not be combined in a random manner. Atoms will just combine under the certain laws. Atoms will combine under the certain laws, and that laws is called as the laws of chemical combinations. What will be called? What it will call? It will call the laws of chemical combination. यानी these atoms will combine and forms the molecule. These atoms will combine and forms the molecule, and under what? Under certain laws. According to under certain laws. What we can say? Under certain laws. Some laws will govern two atoms to form the molecule, and these certain laws is called as the laws of chemical combination. Laws of chemical combination. So my dear soldiers, laws of chemical combination. So my dear soldiers, different laws of chemical combinations are, you will just study these things into the 11th class in a very detailed manner. That is law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, Avogadro's law, law of gaseous volumes. These are the 5 laws by which the atoms or molecule of any state, physical state, that is the solid, liquid or gas, atoms are just combined and form the molecule. So these are the 5 laws, but into the 9th class we have to be study only the 2 laws. How many? 2 laws we have to study, and these are the law of conservation of mass and law of definite proportion. How many these are? The 2 laws are, that is law of conservation of mass, and another is law of definite proportion, yeah, we can say law of constant proportion. So first we'll just discuss about the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. According to this law, the mass cannot be created nor destroyed. Neither mass can be created nor destroyed during the chemical reaction. Is it not? What you will write? The law of chemical law of conservation of mass. According to this law, mass neither created or destroyed during
during chemical reaction. During chemical reaction means what? Whenever the chemical reaction will proceed, whenever the chemical reaction will finish, during the reaction mass of the reactant as well as product remains constant, will remains constant. For example, if we just say here it is a one reaction, H2 plus half O2, and it will just react to each other and forms the water molecule. Got it clear? So देखिए इसका मास कितना है? What will be the mass of the hydrogen? That is 2 gram. Mass of this oxygen is how much it is? 16 ग्राम. आप कहोगे कि सर कैसे याद हो गया? तो अभी आपको अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में हम लोग सिखाएंगे, हम लोग सीखेंगे. Don't worry about it. But here you have to be just see that hydrogen molecule, the mass of hydrogen molecule is of 2 ग्राम. मोलर मास है, एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, इट इज़ द मास ऑफ द 1 मोल. ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि दैट इज़ 2 ग्राम. ऑक्सीजन का जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाउ मच इट इज़ 32 ग्राम. व्हेन इट विल बी हाफ, सो इट विल बिकम 16 ग्राम. एंड मोलर मास ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल हाउ मच इट शुड बी? दैट इज़ 18 ग्राम. ये कैसे आया? अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास. द हाइड्रोजन मास इज 2 ग्राम, ऑक्सीजन मास इज 16 ग्राम, एंड द वाटर मास इज हाउ मच इज इट इज हियर? 18 ग्राम. सो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है पता है सबको? यस, यानी रिएक्शन के पहले जो मटेरियल हम लोग लेते हैं, जो ओल्ड सबस्टांस होता है, जो सबस्टांस रिएक्शन के पहले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट. रिएक्शन के बाद जो सबस्टांस बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. सो ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हाट वी कैन से? मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. बोलो बात समझ में आती है? यानी अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass, what we can say? During the reaction mass of reactant must be equal to the mass of product. Got it clear? Very good. Another example हम लोग जैसे बहुत सा है, ठीक है, all several wherever the reaction will takes place, mass of the reactant as well as the product will remain constant. For example, carbon is reacting with oxygen. What it will gives? It will gives the CO2. So these are the reactant, this one is the product, these are the reactants, this one is the product. What is the mass of this carbon atom? That is 12 ग्राम. आप कहोगे सर हमको मास याद नहीं है. याद करेंगे. Don't take the tension if you are with me. If you are with me, don't take the tension. Got it clear? जहाँ जो चीज़ आएगी उसको हम आपको लर्न कराएंगे. It's my responsibility, it's my job, it's my duty. Only your duty is what? To be follow the path whatever given in the form of instruction. So carbon का molar mass how much it will be? 12 ग्राम. ऑक्सीजन का how much mass it will be? 32 ग्राम. जोड़ देंगे दोनों को, when we'll just go through addition, so how much it will be? That is 44 ग्राम. So molar mass of this carbon dioxide is how much? That is 44 ग्राम. बोलो बात समझ में आ रही? Very good. So what we have understood here in the form of the law of conservation of mass, that is during the reaction neither mass can be created nor destroyed. Yeah, what we can say? Yes, that during the chemical reaction mass of reactant must be equal to the mass of product. These things has been explained in the form of the activity in your NCERT book. NCERT book में क्या किया? यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, और इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या हुआ? एक इग्निशन ट्यूब इस तरीके से रख दिया उन्होंने, धागे से लटका करके, इसको धागे से बांध करके इससे लटका दिया. यहाँ पे क्या लगा दिया? कॉर्क लगा दिया, ताकि कोई भी लीकेज ना हो. ठीक है. और इस बीकर के अंदर इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे सोडियम सल्फेट रख दिया, Na2SO4, और यहाँ पे क्या रख दिया?
BaCl2, BaCl2 क्या नाम है? बेरियम क्लोराइड। अब आप कहोगे कि सर कैसे नाम याद रखें? सब कुछ सीखेंगे हम लोग यहीं पे, लेकिन इन अ सीक्वेंशियल मैनर। तो सपोज दैट यहाँ पे जो मास है BaCl2 का कितना है? मान लीजिए चलिए कितना है? 3 ग्राम है। Na2SO4 का मास कितना है? 2 ग्राम है। बोलिए, तो यदि हम रिएक्शन कराते हैं बिटवीन दिस वन, किसके बीच में? BaCl2 प्लस किसके बीच में? Na2SO4 के बीच में, तो बताइए क्या बनेगा? यस, दैट इज BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl, ट्वाइस NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आप कहोगे कि सर कैसे रिएक्शन होगी? तो कुछ नहीं, आपको प्लस माइनस, माइनस प्लस को करना है। यहाँ पे बेरियम क्या होता है? 2 प्लस होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, सोडियम के ऊपर प्लस होता है, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस होता है। माइनस प्लस के पास, प्लस माइनस के पास, तो प्लस ये है, प्लस गया किसके पास? माइनस के पास गया। क्या बना लिया? बेरियम सल्फेट बना लिया। यहाँ पे माइनस है, ये किसके पास जाएगा? प्लस के पास जाएगा, और क्या बना लिया? NaCl बना लिया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जब रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उस समय इसका जो मास होगा वो भी कितना ग्राम रहेगा? 5 ग्राम रहेगा। यानी रिएक्शन के पहले आपने कितना मास लिया? BaCl2 प्लस Na2SO4 का, दैट इज ऑफ 5 ग्राम। रिएक्शन हो गई, कंप्लीट हो गई, तब भी जो है रिएक्शन के अंदर जो फ्लास्क का जो मास है, यानी टोटल जो मास है वो कितना होगा? 5 ग्राम होगा। तो इसके बेस पे हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास ऑफ द रिएक्टेंट या मास ऑफ द प्रोडक्ट या फिर मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। गॉट इट क्लियर? Very good. Now we'll just understand the second law of this law of chemical combination, that is law of definite proportion, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? law of constant proportion, law of definite proportion या फिर law of constant proportion, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है बाबू? देखिए, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेटेड दैट इनटू द कंपाउंड, इनटू द मॉलिक्यूल द मास ऑफ एलिमेंट विल फिक्स्ड, मास ऑफ एलिमेंट विल फिक्स्ड। या फिर क्या कह सकते हैं कि इन कंपाउंड द एलिमेंट विल प्रेजेंट इनटू देयर फिक्स्ड मास, इनटू देयर फिक्स्ड मास। क्या मतलब है इसका? मतलब देखिए, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, क्या? वाटर। वेरी सिंपलेस्ट एंड वाइडली प्रेजेंट मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, दैट इज वाटर। अर्थ का सबसे ज़्यादा कवर किससे है? किस मटेरियल से है? सबसे मैक्सिमम परसेंटेज, दैट इज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, अब वाटर मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? H2O होता है, सभी को पता है। यदि यहाँ पे इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का मास देखें तो कितना है? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम। बोलिए, बात समझ में आई? तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो 2 ग्राम, ऑक्सीजन एलिमेंट क्या है? 16 ग्राम। और ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स्ड प्रोपोर्शन। भी बहुत सारे नाम इसका दे सकते हैं आप। यानी यदि आप वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हो, ठीक है, यदि वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर हाइड्रोजन का मास हमेशा कितना होगा? 2 ग्राम होगा। मोलर मास कितना होगा? 2 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा? 16 ग्राम होगा। यानी हाउ मच? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन व्हेन विल रिएक्ट विद द 2 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन, देन 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस्ड। गॉट इट क्लियर? What I am stressing, what I am emphasizing, you have to be focused. Law of definite proportion, law of constant proportion,
लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि इनटू द मॉलिक्यूल, इनटू द कंपाउंड, व्हाटएवर द एलिमेंट विल प्रेजेंट, दे विल प्रेजेंट इनटू देयर फिक्स्ड मास, दे विल प्रेजेंट इनटू देयर फिक्स्ड मास। यदि आप पानी कहीं से भी ले लो, चाहे पॉन्ड से ले लो, रिवर से ले लो, ग्लेशियर से ले लो, रेन वाटर ले लो, माउंटेन से ले लो, ओशियन से ले लो, कहीं से यदि आप वाटर ले रहे हो या फिर उसको कोई भी सिंथेसाइज कर रहा है, चाहे आप कर रहे हैं, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे केमिस्ट्री लैब के अंदर कोई और दूसरा सिंथेसाइज कर रहा है, यदि वो वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होगा। ये फिक्स्ड है, दैट इज कांस्टेंट है, दैट इज डेफिनिट है। बोलो बात समझ में आती है? तो इन दो लॉज के बेस पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 2 पोस्टुलेशन बेस्ड हैं, उसको आपको एक बार फिर पढ़ना है और मुझे आप बताएंगे कि विच पोस्टुलेशंस is just based on the law of conservation of mass, which postulation of Dalton atomic theory is based on the law of definite proportion, law of constant proportion. law of constant proportion मतलब समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल फिर से एक बार मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कब कहोगे? जब कार्बन का मास कितना होगा 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32 ग्राम। तो इस केस में यानी जब कार्बन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल तभी बनेगा जबकि कार्बन का मास कितना हो 12 ग्राम हो और ऑक्सीजन का मास कितना हो 32 ग्राम हो। आर यू गेटिंग माई कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग माय डियर सोल्जर्स? यस, वेरी गुड। सो we have to be remember the law of conservation of mass, law of definite proportion, and with these 2 law we have to correlate the 2 postulations of the Dalton atomic theory। यदि आप correlate नहीं कर पा रहे हैं डोंट वरी, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर and will correlate these law with the Dalton atomic theory। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, enjoy करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।